Okay, so everyone has joined. So I hope समझ में आया what is conjugate acid and base. Yes, sir. So conjugate अभी base ही मैंने बताया, acid नहीं बताया. Conjugate base क्या है? फिर से मैं repeat कर रहा हूँ. Conjugate base of an acid is the part or species which formed by releasing or loss of H plus ion. तो definition ऐसे बोल सकते हैं. When an acid release H plus ion, the remaining part formed is called conjugate base of that acid. For example, this. Similarly, a conjugate acid of a base. Conjugate acid of a base is a species that formed by gain of H plus ion. For example, when a base gain one H plus ion, when a base gain H plus ion, it form the conjugate acid. Take example, when NH3 gain H plus ion, it form NH4 plus. So NH4 plus is what? NH4 Sir, plus. conjugate acid. Yes, it is conjugate acid of NH3. And NH3 is a base. Is it okay? Conjugate acid base pair क्या होता है समझ में आया? They always exist in the form of pair. NH3 is a base, then its conjugate acid is NH4 plus. HCl is an acid, then its conjugate base is Cl minus. So they always exist in the form of pair. That is why it is called conjugate acid base pair. Is it okay? Anant, समझ में आया? Yes, sir. So इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ लिखा हुआ है मैंने, इसको मैं ध्यान से बता रहा हूँ, इसको याद रखना है एकदम. वो ये है कि अगर कोई एसिड स्ट्रॉन्ग है, ध्यान से सुनो, अगर कोई एसिड स्ट्रॉन्ग है तो उसका कॉन्जुगेट बेस वीक होगा, है ना? ऐसे होता है ना, मम्मी पापा बहुत पढ़ाई करते हैं तो उनके बच्चे बदमाश हो जाते हैं, वैसे ही. सो अगर कोई एसिड काफी स्ट्रॉन्ग है तो उसका कॉन्जुगेट बेस जो होगा वो काफी वीक होगा. एंड इसका उल्टा, अगर एसिड वीक है तो उसका कॉन्जुगेट बेस जो होगा वो काफी स्ट्रॉन्ग होगा. इज इट ओके? Yes, sir. एंड Sir, रिवर्स. यस यस. सर वो जो CH3COOH होता है वो तो एक वीक एसिड होता है, मतलब उसका कॉन्जुगेट बेस जो होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है. यस, वही यहाँ कह रहा हूँ मैं. इफ acid is strong then its conjugate base is weak, and if acid is weak then its conjugate base is strong. Similar thing is applicable for the base as well. If a base is strong then its conjugate acid is weak, and if base is weak then its conjugate acid is strong. Is it okay? तो मैं यहाँ एक स्क्रीन ले रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना तुम लोग. Add a screen here. So first example, और मैं जिससे बोलूंगा वो आंसर देना. So first is Anant. CH3COOH. When it release H plus ion, it forms CH3COO minus. So बताओ यहाँ पे conjugate acid base कौन होगा, कैसे लिखेंगे? Yes Anant. CH3COOH is acid or base? Hello. CH3COOH, it is acid or base? Is a Sir, base. Okay. Swayam is Sorry, sir. Acid, citric acid. Where is Anant is not joining yet. Okay, so Swayam said it is acid. Obviously, man. Oh, here. So CH3COOH.
तो ये H+ डोनेट कर रहा है ना, तो इसमें सोचने वाली कौन सी बात है? H+ डोनेट किया है, इसका मतलब तो ये एसिड ही होगा, और ये अगर एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट बेस कहाँ है? वेयर इज कॉन्जुगेट बेस? स्वयं, दिस इज कॉन्जुगेट बेस. CH3CW. Yes. So this CH3COOH, it is a strong acid or weak acid? Ahili, CH3COOH is a strong acid or a weak acid? The strong acid. Strong acid. Deepak, it is a strong acid or weak acid? Sir, it is very weak acid. Why? Why it is weak acid? Sir, because by Arrhenius, I know that it does not ionize free in water, and also its conjugate base is also very strong. No, this is not the reason. If its base is strong, this is the outcome of it is a weak acid. है ना, ये एक वीक एसिड है, इसीलिए इसका कॉन्जुगेट बेस स्ट्रांग होता है. तुम इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते रिवर्स ऑर्डर. It is weak acid because it not fully dissociate. This is the reason. So as it is a weak acid, therefore its conjugate base is strong. Is it okay? समझ में आया? Take another Yes. example. Take another example. Suppose NH4OH. Okay, when it gain H plus. Okay. Okay, नहीं ये example ठीक नहीं है. Suppose pH3. When it gain H plus, it produce pH4 plus. So pH3 is a obviously behave like a base here because it gain H plus, Yes, and sir. so obviously it is a conjugate acid, and it is a strong base or weak base? It is a Sir, weak base. yes, it is a weak The base. weak. So obviously conjugate acid is and vice versa. So इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है. कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम लोग कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस चैप्टर. सो देखो एक यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिया हुआ है कि व्हाट इज मीन बाय द कॉन्जुगेट एसिड पेयर. इस तरह का क्वेश्चन आता है. फाइंड द कॉन्जुगेट एसिड और बेस ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज. इस तरह का क्वेश्चन आता है. डायरेक्टली तुमसे पूछेगा, HNO3 दे देगा और बोलेगा कि इस HNO2 इसका कॉन्जुगेट एसिड और बेस जो भी अवेलेबल हो वो बताओ मुझे. तो कैसे करते हैं इसको सॉल्व? मैं एक एग्जांपल लेता हूँ. जैसे सर, HNO2 इसका है. तो बेस होगा. यस, इसका कॉन्जुगेट बेस होगा सर. देखते हैं. सो ये अपना H+ रिलीज कर सकता है. इट हैज टेंडेंसी टू रिलीज H+ and NO2 form minus. NO2 minus. So obviously it remove H+, therefore it behave like a acid, and this behave like a base. Better to say Base. conjugate base. So देखो HNO2 के लिए NO2 minus is conjugate base. Similarly एक और ले लेते हैं हम लोग यहाँ से. For example OH minus. So OH minus has a tendency to gain H+ and form water. Therefore OH minus behave as a base and its conjugate acid is H2. Is it okay? So सर देखो और एक आपने उसके साइड में लिखा है O2 माइनस करके आ रहे बेस. हम लोग आ रहे. पहले ये समझ में आया. एक एक छोटा करके लो. यस सर. इसका और एक टेंडेंसी क्या है, ये OH माइनस अपना H+ डोनेट करके O2 माइनस बना सकता है, विच इज वेरी रेयर कंडीशन. ओके, दिस इज वेरी रेयर कंडीशन, बट इट इज पॉसिबल in this condition as it is donate H+ ion, so it is a base, sorry, it is an acid, and O2 minus become a conjugate. But what is very important thing to note here, यहाँ पे बहुत important चीजें ध्यान रखना. OH minus is very strong base, क्योंकि बेस का डेफिनेशन ही OH माइनस से होता है. So OH minus itself is a very strong base, isn't it? So its conjugate acid H2O is very weak. Is it okay? Aili, is it okay or not?
Hello. Yes, sir. Okay. So next is OH minus as a acid. It is strong or very weak? OH माइनस एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, तो ये वीक होगा या स्ट्रांग होगा? सर वीक होगा सर। यस, वेरी वीक, और ये वेरी स्ट्रांग। तो जब OH माइनस एज अ एसिड बिहेव करेगा तो बहुत वीक होगा एज एन एसिड, सो इट्स कॉन्जुगेट बेस O2 माइनस इज वेरी स्ट्रांग। Is it okay? This is how we identify something is very strong or very weak. This is one of the way. एंड सिमिलरली लुक एट, मैं दो बताया तुम लोग को, बाकी ये सब जो है इन सब का इसी तरीके से इक्वेशन लिख लिख के ये फाइंड आउट करना यहाँ पे किया हुआ है। मैं स्लाइड्स भेज दूंगा आज। ओके, एनी डाउट? यहाँ पे जो भी जो एग्जांपल लिखा हुआ है एक बार चेकआउट कर लो, किसी को किसी में डाउट है तो मैं यहाँ बता रहा हूँ अभी। एनी डाउट? नो? नो सर। सर एक चीज पूछना है सर, ये Cn माइनस का अपने आप से कैसे कर दिया सर HCl? Which one? Cn minus? Yes sir. So it has tendency to gain H plus, isn't it? Yes Cn sir. minus Yes sir. has the tendency to gain H plus, so it form HCl. So ये यहाँ बेस होगा तो इसका कॉन्जुगेट एसिड। ओके, सो इस तरह का क्वेश्चन देखो तुम लोग के बुक में भी है। इट इज फ्रॉम NCERT, क्वेश्चन नंबर 37। व्हाट आर द कॉन्जुगेट बेसेस ऑफ द ब्रोंस्टेड एसिड HF? HF का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? सर F माइनस। F माइनस। देन स्वयं H2SO4 का? सर H2SO4 का कॉन्जुगेट बेस? सर SO4 2 माइनस। ऐसे देखो, ऐसे करना, इसमें पॉसिबल है एक H प्लस छोड़े और बना दे HSO4 माइनस। तो H2SO4 का H प्लस डोनेट किया तो ये एसिड हो गया और ये इसका कॉन्जुगेट बेस हो गया। सो वन पॉसिबिलिटी इज HSO4 माइनस। अनदर सर पॉसिबिलिटी, तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम लोग दोनों पॉसिबिलिटी लिखेंगे। यस यस, दोनों पॉसिबिलिटी लिखो। अनदर पॉसिबिलिटी, it release 2H plus and form SO4 2 minus. So this is also conjugate base. So H2SO4 का दो conjugate base होता है, HSO4 minus and SO4 2 minus. Is it okay? And similarly HCO3 का क्या होगा? H plus plus CO3 minus. So this is your conjugate base. आई होप किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। मैंने क्लियर बताया ब्रोंस्टेड एसिड, ब्रोंस्टेड बेस एंड कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, हाउ टू फाइंड आउट इट इज स्ट्रॉन्ग और वीक। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज इन्फॉर्म मी जस्ट नाउ। आहिली, एनी प्रॉब्लम? No, sir. If not, then fine. Answer me. What is the conjugate acid for NH2 minus? NH2 minus का conjugate acid? No, no. Let her answer. NH2 minus का conjugate acid क्या होगा? Sir, H2. Sorry. Repeat. How to find out conjugate acid? Obviously, it is a base. So base has a tendency to what? To gain H plus. तो इसमें एक H plus जोड़ दो ना, ये क्या बना देगा? NH3 बना देगा. So if this is a base, H plus gain होने के बाद क्या बनाया? Conjugate. Is it okay now? Highly? Yes, sir. Okay, then स्वयं NH3 का क्या होगा? स्वयं NH3 H प्लस ऐड होगा, ऑब्वियसली प्रोडक्ट क्या बनेगा? NH4 बोलने से नहीं होगा, NH4 प्लस। So this is its conjugate Yes, sir. acid. Now Deepak, HCO Yes, sir. minus इसका क्या होगा?
सर SCOH होगा और यहाँ पर H+ होगा। HCOH को क्या कहते हैं, किसी को नाम याद है? कॉन्जुगेट एसिड। कॉन्जुगेट एसिड है ऑब्वियसली, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका नाम क्या होगा? नोमेनक्लेचर सिखाया है मैंने, क्या है ये कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, इसका नाम क्या होता यस था? सर, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली का नाम है, इस प्रोडक्ट का नाम क्या है? मिथानोइक एसिड। सामने का पढ़ो लोग, पीछे का भूलते जाओ। मिथानोइक एसिड, और इसका कॉमन नेम क्या होता था? सर फॉर्मिक फॉर्मिक एसिड। एसिड। फॉर्मिक एसिड किसमें मिलता है? मैंने बताया था, एंट सर बाइट। एंड एंड बीस्ट। यस, सो एंट के बाइट में फॉर्मिक एसिड होता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। अब ये कुछ एग्जांपल है, तुम लोग कर लेना। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। व्हाई आई राइट? सर ये क्या है सर? हाँ, सर लेविस एसिड बेस क्या है? मैं आ रहा हूँ। लुईस एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट, this is the most important concept, because using this concept you can clearly identify each and every substance as an acid or a base, whether in aqueous medium, in gaseous medium, in compound state, in a single state, everything. So that is why Lewis acid and base concept is the most important concept. Okay, और यही हम लोग का अभी तक का, मतलब अभी तक 2000 कितना चल रहा है हमारा, 2021, अभी तक इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग फॉलो करते हैं एज अ फाइनल कॉन्सेप्ट। सो अकॉर्डिंग टू लुईस कॉन्सेप्ट, व्हाट इज एसिड एंड व्हाट इज बेस? इसको समटाइम बहुत सारे साइंटिस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। The reason is number of electron is responsible for being acid or a base. So a acid is a substance which can accept or having a tendency to accept a pair of electron. कोई भी सब्सटेंस एसिड तब बनता है जब या तो वो इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट कर लेता है, या फिर उसके पास टेंडेंसी होता है कि मैं इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता हूं। ऐसे किसी भी सब्सटेंस को आप क्या कहोगे? दैट इज अ एसिड। ओके, अब इसको समझेंगे कैसे? एग्जाम्पल जो है, इससे हम लोग क्लियर हो जाएगा पूरा कॉन्सेप्ट। अभी तक कुछ समझ में नहीं आया होगा, आई नो। सो देखो, पहला एग्जाम्पल, ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल जिसका सेंट्रल एटम जो है उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो। नाउ कौन बताएगा मुझे ऑक्टेट इनकम्प्लीट होने का क्या मतलब होता है? सर मतलब वो अपना जो 8 इलेक्ट्रॉन्स अचीव नहीं कर पाए एसिड आउटर मोस्ट सेल में। यस, चैप्टर 4 केमिकल बॉन्डिंग। स्वयं याद आ रहा है लुईस डॉट डायग्राम? हेलो क्या सर? लुईस डॉट डायग्राम ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, नहीं याद है? नहीं सर। अभी सर वो पूरा तरह से 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते सर लास्ट सेल में। आइली तुमको याद है? लुईस डॉट डायग्राम पढ़ी हो? नहीं? ओके, सो केमिकल बॉन्डिंग करते वक्त देखना, सेंट्रल एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए होता है फॉर बिकम स्टेबल। लेकिन Yes, कुछ sir. एक्सेप्शन है, कुछ ऐसे एक्सेप्शंस है जिसमें सेंट्रल Yes, एटम sir. के पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, उससे कम होता है, उसको हम लोग कहते हैं बिलो ऑक्टेट और इनकम्प्लीट ऑक्टेट। और अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता है तो उसको हम लोग ओवर ऑक्टेट बोलते हैं। तो जिसके पास कम हो इलेक्ट्रॉन, दैट काइंड ऑफ स्पीसीज आर कॉल्ड बिलो ऑक्टेट स्पीसीज एंड दे बिहेव एज अ एसिड। द रीजन इज इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है सेंट्रल एटम में, तो इसके पास टेंडेंसी क्या होगा? टू गेन सर इलेक्ट्रॉन। ये एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो मैं एक एक को यहाँ डिटेल में बताऊंगा। लेट मी ऐड अ स्क्रीन, जस्ट अ मिनट।
क्योंकि आई होप सब पढ़ के भूल जा रहे हो लोग। सो पहला एग्जांपल, कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जिसके सेंट्रल एटम में ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो। तो इसको देखते हैं कैसे समझते हैं, तो रिकॉल कर लेते हैं वापस केमिकल बॉन्डिंग। फॉर एग्जांपल BF3 नॉट BF4, माय मिस्टेक, दिस इज BF3। BF3 में बोरोन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट शेल में? Sir, 3. इट हैज 3 इलेक्ट्रॉन्स। सो मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर रहा हूँ। इसके आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन होता है। और फ्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? Sir, 7. 7। यस करेक्ट। आई होप यहाँ तक सबको पता होगा, इसमें मैं कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर रहा हूँ। सो इट हैज 7 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट। नाउ हाउ दे फॉर्म बॉन्डिंग, दैट दिस इज अ टाइप ऑफ विच बॉन्डिंग, आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड? किस तरह का बॉन्डिंग बनाता है? Sir, covalent. इट इज कोवेलेंट बॉन्ड। यस। सो इसका लुईस डॉट डायग्राम कुछ ऐसे हम लोग बनाते थे, अगर याद हो तुम लोगों को, दैट ऐसे इलेक्ट्रॉन लिखते थे एंड देन फ्लोरीन लिखते थे उसके आसपास, और फिर इसका 7 इलेक्ट्रॉन को ऐसे अरेंज कर देते थे। Yes, sir. हर फ्लोरीन के पास देखो 7 इलेक्ट्रॉन मैंने लिख दिया। उसके बाद क्या होता है? शेयरिंग होता है। दिस फ्लोरीन टेक 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बोरोन और इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, ये स्टेबल हो गया। सिमिलरली ये फ्लोरीन भी उससे एक ले लेगा, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, ये स्टेबल हो गया। ये फ्लोरीन भी उससे 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, ये स्टेबल हो गया। तो अगर एक एक इलेक्ट्रॉन बोरोन का लिया है तो बोरोन को एक एक इलेक्ट्रॉन डोनेट भी करना पड़ेगा, isn't it? This is a Yes, mutual sir. sharing. This is called, this kind of sharing is called mutual sharing. अगर एक लो उससे तो एक उसको डोनेट भी करो, this is called mutual sharing. But this boron now contain how many electrons? If you count in this circle, Sir, 6. only 6 electron is available. Look, 2 यहाँ है, 2 ये रहे और 2 राइट हैंड साइड में। So total 6 electron which is less than 8 electron, but still this compound is stable. तो इसीलिए इसको कहा जाता है below octet. Below octet, octet का मतलब होता है 8. So below 8 electrons, this is called below octet. So it has tendency to gain electron, isn't it? यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी है क्योंकि इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हुआ है। Therefore, any substance which has below octet condition like BF3, AlCl3, FeCl3, etc., they behaves as a Lewis acid. Ahili, is it clear or not? Yes, sir, it is clear. एग्जाम में डायरेक्टली ऐसे पूछेगा, 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा दिस कंपाउंड इज बिहेव एज अ लुईस एसिड और लुईस बेस, डायरेक्टली। तो तुमको उस वक्त दिमाग में ये सोचना होगा कैसे बताएं कि वो लुईस एसिड है या नहीं है। ठीक है, तो पहले एग्जांपल याद रखो। अगर देखोगे, यस सर, हर एक एसिड को लुईस एसिड नहीं बोलते क्या? नहीं, इसको हम लोग आर्हीनियस एसिड बोल सकते हैं क्या? BF3 इज आर्हीनियस एसिड? No, sir, because it is unable to explain. That's why. यस। तो उसी तरीके से अगर लुईस कॉन्सेप्ट से तुमसे पूछा है तो उस कॉन्सेप्ट से बताओगे। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, एनी सिंपल कैटायन। कोई भी सिंपल अगर कैटायन है, कैटायन का मतलब क्या? उसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, isn't it? That is why उसके पास पॉजिटिव चार्ज आ Yes, गया। sir. सो अगर किसी के पास इलेक्ट्रॉन कम है तो उसके पास क्या टेंडेंसी होता है? इलेक्ट्रॉन को गेन करने का या इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का? पॉजिटिव चार्ज हैज टेंडेंसी टू अट्रैक्ट विच चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव? हेलो? Yes, sir, negative. So if something is positive means it has tendency to accept electron. So simple cations like Na plus, K plus, Ag plus, Ca2 plus, etc. Whatever be the positive ion, they all have tendency to accept electron.
That is why all cations are called Lewis acid. Okay. And the last one, if a substance having central atom contain vacant d orbital, then that particular substance is also behave as a Lewis acid. Now, can anyone answer me what is vacant d orbital? Sir, d orbital has 0 electrons. D orbital has 0 electron. Is it? Anyone else? Anyone else? नहीं समझ में आया? सिलिकॉन के का एटॉमिक नंबर कितना होता है? Come on. Yes, hello. Fourteen, sir. Okay, PCl5 इसको देखते हैं हम लोग. PCl5 फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 15. Sir, 15. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, देन क्या होगा? 3p3. एंड 3 का D जो होता है वो खाली है. ओके. सो यहां पर क्या टेंडेंसी है कि ये D ऑर्बिटल अवेलेबल तो है थर्ड शेल में. थर्ड शेल में D सबसेल और D ऑर्बिटल इज अवेलेबल, but it do not contain any electron. So this kind of condition is called vacant d orbital condition. इसमें फायदा क्या नुकसान क्या होता है हम लोग थोड़ा इसको मैंने ऑलरेडी बता दिया था कोवैलेंसी में, फिर से एक बार सुन लो. तो इसमें अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऐसे लिखोगे आप लोग, तो डी ऑर्बिटल के पास कितना घर होता है? यस Sir, 5. सॉरी सर, ये बार क्वेश्चन फिर से बोलिए सर. डी ऑर्बिटल के पास कितना सारा, डी सबसेल के पास कितने सारे ऑर्बिटल्स होते हैं? So it has 5 orbitals, right? Yes, sir, 5. Do not contain any electron. So यहाँ पर Yes. जितने भी unpaired electron होते हैं, that is called the valency of that particular substance. So यहाँ पर इसका valency कितना है? 3 है. ये तीनों unpaired है. So इसका valency जो है वो 3 है. लेकिन अगर इसको बाहर से एनर्जी मिल जाए ना एक्सटर्नल स्टेट में, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन 3s2 से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पे चला जाता है और फिर ये कुछ ऐसा दिखता है 3s1, 3p3 एंड 3d1. तो इस वक्त इसका वैलेंसी अगर आप लोग चेक तो इसमें करोगे, हाइब्रिडाइजेशन होता है सर. इसका अगर अभी वैलेंसी चेक करोगे आप लोग, तो इसके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. तो इस वक्त इसका वैलेंसी जो होता है वो होता है 5. सो phosphorus has 2 kind of valency, 3 and 5. That is why PCl3 is exist as well as PCl5 is also exist. तो जब ये इस स्टेट में रहता है तो PCl3 बनता है. जब नीचे जो स्टेट देख रहे हो इसमें ये PCl5 बनाता है. जब ये PCl5 बनाया है उस वक्त d ऑर्बिटल में जगह है इलेक्ट्रॉन्स के लिए, यहाँ पे खाली जगह है, इलेक्ट्रॉन आ सकता है यहाँ? यस और नो? स्वयं समझ में आ रहा है? हाँ सर. ये देखो ये खाली घर है, तो इस घर में ये सोचेगा फॉस्फोरस की इसको भी तो रेंट पे दे सकते हैं हम लोग. तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का पेयर का आने का टेंडेंसी अवेलेबल है. सो इट हैज टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन. Therefore, Yes, sir. PCl5 is a acid according to Lewis because its vacant d orbital has tendency to gain electron. Will it be okay for everyone? Yes, sir. So just looking at some molecule, you have to answer that it is Lewis acid or Lewis base, especially for your competitive examination. This kind of question mainly asked in competitive examination as a MCQ. ऐसे पूछ देगा SnCl2 it is a Lewis acid or Lewis base. तो आपको पता होना चाहिए, इतना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे लोग तो आपको पता होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से Sn का, सिलिकॉन का, फॉस्फोरस का, ये सब कौन से पीरियड में है?
Sir, carbon family 14. कार्बन फैमिली में भले हो, कौन से पीरियड में है? थर्ड पीरियड्स Sir, ऑनवर्ड, 14. थर्ड पीरियड्स ऑनवर्ड। थर्ड पीरियड के बाद जितने भी एलिमेंट आते हैं उसी के पास डी ऑर्बिटल हो सकता है, सेकेंड पीरियड तक डी ऑर्बिटल नहीं होता। मैंने पढ़ाया है ऑलरेडी, रिवाइज sir. करो। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ, केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल, एटम एंड मॉलिक्यूल, दे आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ केमिस्ट्री। सो प्लीज कीप रिवाइजिंग ईच एंड एवरी टाइम। मेरा एग्जाम लेने का वेट मत करो। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर, रिवाइज देम एज एंड व्हेन यू नीड। एनी डाउट फ्रॉम लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड? बेस नहीं बताया मैंने अभी। बेस नहीं बताया मैंने अभी, No, कोई sir. डाउट है कि नहीं? क्योंकि मैं अभी बेस नहीं बताऊंगा, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। किसी को कुछ डाउट Sir, नहीं है? vacant d orbital और किसका इसका हो सकता है सर? वैकेंट डी ऑर्बिटल, रिपीट। और किसका इसका हो सकता है सर इसमें? मैंने बताया तो, आफ्टर पीरियड नंबर 3 के में जितने सारे अवेलेबल हैं उनमें अवेलेबल हो सकता है वैकेंट डी ऑर्बिटल। दैट डिपेंड ऑन द कोवैलेंसी कंडीशन। जिसका कोवैलेंसी आप देखोगे, कोवैलेंसी एग्जिस्ट करता है 3, 5 समथिंग समथिंग, उसका हो सकता है। ओके सर, जो सिलिकॉन का जो ग्रुप है पूरा उस ग्रुप में होता है क्या लास्ट तक? जर्मेनियम और लेड में भी होता है? यस, होता है, डिपेंड करता है कौन सा कंपाउंड फॉर्म हुआ है। ओके ओके सर। जैसे कि कंफ्यूज तुम लोग हो रहे हो, सो एक मैं यहाँ पे एक बात बता दूं, यहाँ PCl5 लिखा है मैंने। PCl5 is behave as a acid, but PCl3 is behave as a base. PCl5 is behave as a acid because in the covalency state, please mute your microphone. PCl5 is behave as a acid because it has vacant d orbital. Look here, it has a vacancy of d orbital here. Okay, but PCl3 is behave as a base because जब यहाँ पे हम लोग आ रहे हैं तो इसके पास हम लोग यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ देख रहे हैं, तो यहाँ वैकेंट डी ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है। Is it okay? So next question is from silicon fluoride SiF4। SiF4 का सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो एवरीवन। आइली, do you know how to write electronic configuration? Hello? Know how to write electronic configuration? 1s2, 2s2, 2p6, then 3s2 सर SiF4. and 3p4. Yes, सर SiF4. yes. So look here, यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं इस तरीके से। So इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हो। Here its valency is how much? If you see very carefully, कितना सारा Four. unpaired electron है इसके पास? It has a 2 unpaired electrons, so its valency is 2. तो 2 वैलेंसी स्टेट में F4 तो बन नहीं सकता ना, F4 नहीं बन सकता। इसका मतलब ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, और एक्साइटेड स्टेट में जब जाएगा तो ये 3d0 जो स्टेट है ये यूज होगा। यस सर। तो इट हैज नाउ, इसके पास 5 घर होता है, डी के पास 5 घर होता है, और एक्साइटेड स्टेट में आने के लिए यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करेगा। सो अब देखो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो इसका वैलेंसी जो हो जाएगा 4, 3s1, 3p2 and 3d1. So in SiF4 state, it uses its vacant d orbital and hence it behaves as a Lewis acid. Now this is all about this class. If you have any doubts from Arrhenius concept, Bronsted concept or Lewis concept of acid and base, please ask me. Next class we start the Lewis concept of base and then some more derivations from this chapter. Any questions? No sir. Aili,
अगर तुमको देखो प्रॉब्लम हो रहा होगा, आई नो, क्योंकि ये सब चैप्टर तुमने अभी शायद नहीं किया है क्या? चैप्टर 4 स्कूल में हो चुका है, इलेक्ट्रॉनिक No, कॉन्फ़िगरेशन। sir. ओके, No. तो मैं इसका लिंक भेजूंगा। एटलीस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड पीरियोडिक टेबल इसको कवर करो, क्योंकि ये बार बार यूज होगा, हर चैप्टर में यूज होगा। ठीक है, मैं उसको तुमको भेज रहा हूँ, उसको कंप्लीट करो, और जो डाउट होगा मुझसे पूछना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Okay, बिल्कुल sir. नहीं आता। ठीक है स्वयं, सर यस। सर आपने ना वो जो केपी और केसी वाला है ना उसका पीडीएफ नहीं भेजा सर। ओके ओके, अभी मैं भेज देता हूँ। सर मेरा ये थोड़े दिन पहले एग्जाम हुआ सर स्कूल में, तो उसमें मैं वो 2 क्वेश्चन में डाउट है सर, तो मैं आपको भेज दूं क्या? तो एक बार बस ओके चेक करके बता दीजिए सही है गलत है। ओके, सेंड मी दैट। ओके देन, गुड नाइट। गुड नाइट सर, थैंक यू सर। Good night, sir. Good night, sir.